what are the common system faults and how to troubleshoot them in solar PV systems. So we will go through all the scenarios, right? So to avoid any troubleshooting in any system, not only in solar, but if it is a grid power system or it is a battery system or any other electrical system, what is the best method to avoid any troubleshooting? The first thing is the design. If your design is neat, clean, and proper, it's safe, then yes, you can guarantee my system is not going to have any trouble in the future, right? Or maybe very less trouble you may arise during this lifetime. The next thing is the regular maintenance, which is the second line of defense. The regular maintenance. There are you can divide the maintenance in categories like if it is a corrective, the other one is predictive, right? Right, and this type of maintenance we can do corrective maintenance. It is a very normal case we can see in a regular basis. But the first step, it was the second line of defense of O&M. But the first line of defense is it is the all the documents of all the products that comes along with the object or equipment from the original equipment manufacturer. And also the next thing is we should have to keep all these documents in a very handy location, and it should be protected from the weather and chemicals and rodents, right? So these are the basic common thing that we need to do. We all know that in many cases, most of common system failures are usually very simplest, right? If you see, if you talk to common problems, then we may also put on like blown fuses. So the person who are in EPCs or who are in O&M of solar power plant, they will be very well aware about the blown fuses cases. So on a regular basis, this is the cases in solar stream boxes. The next thing is trip circuit breakers. So trip circuit breakers also need to be checked in solar rooftop systems. And the next, other than trip circuit breakers, there are the bad connections that would have been done by the installers who are not properly trained. So bad connection would also lead to, जैसे हम सब कुछ केस में देखते हैं कि MC4 connectors में if connectors are not properly cleaned, right? So if not proper trimming tools are available on the site, then what does the installer do? They actually they do connect the connectors with help of pliers. जिसे पकड़ कहते हैं हम, pliers, right? So with the help of pliers they do, but these connections are very loose. So in future, gradually the contacts will burn out, and you will face start facing problems. So the most common system faults. So following are the troubleshooting checklists for the system operations that can be completed visually. So the first thing is the weather. If it is a cloudy or heavy, so most of people would think if my system is not generating as per its proper capacity. So you can say yes, my weather is not good. Maybe it is cloudy. So right now, is there any season in India? System generation. So I would like to request everyone. So if you can please mute your mic, so it would be next to everyone else, because actually a problem to inside. So the first thing is weather. If it is cloudy. The next thing is shading. So shading is also the one of the most critical thing, and it should be done on regular basis as per the experience, right? Fuse and circuit breakers. So blown fuse and circuit breakers, as we can see here in the picture, the fuse, one of fuse in the instrumentation combiner box is blown away, right? So this also may be the case. System wiring, as I said earlier, if it is not, if the installer has not used proper crimping tools, then in that case, what will happen? Your MC4 connector will not properly tied, and there would be loose chance and maybe fire hazard will also happen in the
is the polarity of the wiring. If in place of positive negative, Requirement, thank you for calling. or reverse, then it is also a big problem. And we should also check the system for system voltage is 100,000 volts, and the equipment has been connected of system voltage like 600, then there would be a problem. But if you are connecting 1500 voltage system in 1000 volt system voltage, then there won't be any problem. But 1000 volt system voltage of an equipment would have been connected in 1500 volt system, then there would be a major problem. So burning issues may be very common in that case. So these are the golden rules for avoiding any electrical hazards, right? The first thing, in normal electric system, like you can say in a house or in any small electrical system, what we can do, we can actually isolate the supply from the source of electrical energy, right? We can disconnect or isolate the entire system when doing work. And the next thing is, in general electrical system, we can ensure against accidental reconnection to the supply. The next thing is, what we can do, we can ensure, yes, if there is no voltage present in the connector, so it is a safe system to work upon them, right? We can also make sure the live parts cannot be touched in the general electric system. But what happens in the PV system? So we all are aware, PV modules cannot be switched off, right? PV module, when it is exposed to sunlight, it will keep generating. So it cannot be switched off. And if in the rooftop solar system, it is connected to on your terrace, so it will be a major critical case for everyone to stay safe from this system, right? So what we can do, we can put a switch between inverter and module. So there won't be, so inverter can be isolated from solar module system, solar modules, right? So what was in the case, we can make sure there was no voltage, but in PV array particular, we cannot make sure if it is disconnected or not, because it will always present in the module level. We can, but in PV system, yes, we can make sure all the live parts are not touched with proper safety equipment. So the next slide is, so there are actually we will be going through 3 troubleshooting scenarios, and we will see what are the fault indications, right, and what are the possible causes of the fault, or what are the solutions available that we have at the place. The first troubleshoot problem, what we can error is the system provides no power. The person may come to you, he can ask, yes, my system is not working, it is providing no power. So what are the possible causes? So the first thing is a meter is showing no output power. You can ask if meter is showing no output power, or inverter is showing no input voltage from the array and no injection into the grid, right? You can ask. The indication is no DC voltage at the inverter input. So at the inverter input, that means it is the voltage is coming from the string. It is coming from module. So what are the possible causes? Maybe it is too large and there would have no enough light to generate electrical power, electrical voltage. You can ask him. Yes, you can try after sometime when it is when there is some light. What is the next thing? If it is not too dark, right? System voltage is at the inverter input, it is not available. The thing here which I discussed in the last slide, it is the DC disconnect switch, which we were putting into the between the module and inverter. So main DC disconnect, and possibly it can be isolator or a switch in this unit you may be using, right? So it is disconnected. If it is not the case, maybe the string fuse is blown due to lightning strike. String fuses may also would have been blown. The next thing is
excess voltage suppressor that has short circuited the array to the earth. Right. So there is a voltage suppressor. If it is not the case, then what we can say, we can also possible one of the possible cause we can say it is open or short circuit array. Yes, your entire array would have been short circuited. So damaged cable and module would also have been dismantled maybe, or it may have been damaged in the light or in the joinery kind of things, right? But if the fault indication is apart from no DC voltage at the inverter, if it is there is a DC voltage, right? So in earlier case, what happened? There was no DC voltage, but in this case, there is a DC voltage at the inverter input, but inverter indicators are not showing anything, right? So what Mr. Karthike told, your inverter would be showing some kind of indication. If there is a some DC fault would be there. So once again, excuse me. So it would be case of the defective inverter. So in that case, what will we doing? We will contact the manufacturer, because in any case, if there is DC voltage at the inverter input and inverter is not showing anything, that means your inverter is faulty. Inverter must be showing something, right? Inverter indicates DC input voltage, but in this case, there is no system power, but inverter indicates DC input voltage during the daytime, but nothing is being. I am getting this. Okay. So not being put onto the grid, nothing has been generated from the inverter end. So what is the possible cause? So utility grid blackout or brownout. So what is the blackout and brownout? So blackout would be like there is no grid into your area, right? And brownout would be like the unbalanced grid. So the voltage is out of control, is out of control. So like that, if it is the case, one of the case, then yes, your inverter would not be generating. Blown fuses, activated circuit breakers, right, on AC side also. So if a grid is available, but maybe your AC circuit breaker is in trip position, हो सकता है कि हमारा ग्रिड अवेलेबल ना हो या हो, और हमारा जो AC सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप कंडीशन में हो. So इस केस में भी हमारा क्या होगा कि इन्वर्टर जो होगा it would show DC इनपुट वोल्टेज, लेकिन वो कुछ जनरेट नहीं कर रहा होगा. या तो ये भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा था कि ग्रिड में ब्राउन आउट हो. ब्राउन आउट मीन्स आपका जो ग्रिड है दैट इज अनबैलेंस. So your grid is unbalanced. Voltages are not in control. Fluctuating voltage, current, maybe system कुछ faults हो. So in that case, what will happen? कि इन्वर्टर जो होगा वो फॉल्ट डिटेक्ट करेगा और वो शटडाउन कंडीशन में चला जाएगा. ठीक है. तो हमें क्या करना है कि इन्वर्टर के ऊपर फॉल्ट इंडिकेटर्स को चेक करना है. हमें सारी स्ट्रिंग को चेक कर लेना है. हो सकता है कि स्ट्रिंग साइड से भी कुछ फॉल्ट एराई हुआ हो सकता है कि डीसी साइड से कुछ फॉल्ट एराई हुआ हो वन मोमेंटरी, और उस केस में क्या हो इन्वर्टर कनेक्शन बंद कर दिया हो, लेकिन इन्वर्टर के ऊपर वोल्टेज आर अवेलेबल, तो इट इज इंडिकेटिंग वोल्टेज एट द इन्वर्टर एंड. राइट. अगर ये भी नहीं होता है तो इन्वर्टर में ग्रिड फॉल्ट हो सकता है कि अगर फ्लक्चुएशन नहीं है ग्रिड में, फ्लिकरिंग नहीं है ज्यादा अवेलेबल, तो हो सकता है कि ग्रिड भी ना हो. ठीक है. ये जो सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज सिस्टम आउटपुट व्हिच इज लोअर देन एक्सपेक्टेड. हमने 5 किलो का सिस्टम लगाया लेकिन मेरा सिस्टम जनरेट नहीं कर रहा है. मेरा 1 किलो का सिस्टम है. ये क्वेश्चन काफी एराई हो सकते हैं मार्केट में. ठीक है. तो द सिस्टम आउटपुट इट इज लेस ऑन पर किलोवाट बेसिस. तो पर किलोवाट नॉर्मली इंडिया में हम जो सिस्टम होते हैं उसको कितना जनरेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं. इन सम केसेस इन गुजरात के एरिया में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 किलोवाट सोलर रूफटॉप सिस्टम वुड बी जनरेटिंग अराउंड 18% सीरियल. ठीक है. ऑलमोस्ट 1500-1600 यूनिट्स के आसपास ये नॉर्मल होता है. लेकिन हम सेम पर किलोवाट जो जनरेशन है वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में हमें मिले. राइट. तो क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है. हर लोकेशन का जो आपका
Havish, can you please mute Havish Chitteji? Yeah, and Mr. Harshit, yeah, please. तो हो सकता है कि हमारा जो इरिडियंस लेवल है वो अलग अलग हो, क्योंकि हमारा इंडिया काफी बड़ा है। इंडिया के अलावा भी दूसरी कंट्रीज है जहाँ पर इरिडियंस लेवल अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारा पर किलोवाट सिस्टम जो आउटपुट है वो एक जैसा ना हो। लेकिन कुछ जैसे हम कुछ भी जहाँ भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि कस्टमर को एक गारंटी जनरेशन देते हैं, राइट, कि आपका पर किलोवाट मिनिमम इतना जनरेट होगा। अगर वो नहीं मिलता है तो अनसेटिस्फाइड कस्टमर व्हाट ही विल डू, ही विल कॉल यू, यस माय सिस्टम इज नॉट जनरेटिंग। तो द फॉल्ट इज इट इज नॉट ऑप्टिमली डिजाइन, राइट, द फर्स्ट थिंग। क्योंकि उस एरिया में सेम किलोवाट का सिस्टम अगर दिन का 4.5 यूनिट या 5 यूनिट जनरेट कर रहा है एंड योर सिस्टम इज जनरेटिंग faulty design system is generating only 3 kilowatt hour, 3 units. So naturally question will arise. So what is the possible cause? What is the possible fault? So in this case what we can say, inverter and array are not very well matched. तो array जो है उसका वोल्टेज लेवल, उसका मिनिमम साइज, उसका मैक्सिमम साइज, इन्वर्टर का जो मिनिमम वोल्टेज लेवल है, मैक्सिमम वोल्टेज लेवल है, एमपीपीटी के लिए अगर मैच नहीं हुआ है तो इन दैट केस दिस कैन हैपन। सो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ बैड सिस्टम डिजाइन। नेक्स्ट थिंग इज हाई लॉसेस, वोल्टेज ड्रॉप इन द केबल। सपोज सेम 5 किलोवाट का सिस्टम है, अगर 100 मीटर दूर है, ठीक है, इंजेक्शन पॉइंट, ग्रिड इंटरकनेक्शन पॉइंट, और किसी दूसरे सिस्टम में भी 5 किलोवाट का सिस्टम है और उसमें 200 मीटर दूर है, तो व्हाट विल हैपन, जो 200 मीटर दूर जो सिस्टम है उसमें क्या होगा, आपके लॉसेस ज्यादा होंगे, आपका वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। साइज पे भी डिपेंड होता है कि आपका केबल साइज क्या है, व्हाट इज योर केबल साइज, व्हाट आर योर सर्किट ब्रेकर साइज, ठीक है। अगर वो कम रेटिंग के हैं, जैसे केबल के नॉर्मल केस में क्या कहा जाता है कि 1.25 टाइम्स इट मस्ट बी हायर देन द रेटेड करंट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सोलर पीवी सिस्टम, ठीक है, 1.25 टाइम्स। अगर 1.25 टाइम्स नहीं तो व्हाट विल हैपन, या 0.8 टाइम्स है सपोज मान लीजिए, तो क्या होगा कि हमारा जो केबल है वो काफी ज्यादा हीट होगा, ठीक है, और हीट लॉस होगा, एंड योर सिस्टम जो आपको जो जनरेट कर रहा होगा वो भी हीट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देयर वुड बी ह्यूज लॉस इन द सिस्टम। So this is the case where your system output is less per kilowatt peak, ठीक है। ये तो एक बात हमारा सिस्टम डिजाइन की। अब बात आती है इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर नॉट कनेक्टेड वायर, हमने पहले कहा था कि लूज कनेक्शन ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो एमसी4 कनेक्टर्स हैं नॉर्मली if they are not connected with or not terminated to proper crimping tools, then this is very common problem. It is very common problem in the power system because people nowadays are using pliers. तो पक्का सेट है ना, पक्का से एंटीबॉल कनेक्टर टाइट कर देते हैं। तो व्हाट हैपन इन दैट केस, कुछ टाइम के बाद वो कितना भी प्रॉपर आप टाइट किए हो लेकिन वो लूज ही रहता है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर गुड कनेक्टर। तो व्हाट वी नीड टू मेक एंश्योर, आपका जो इंस्टॉलर है उसने प्रॉपर क्रिपिंग टूल का यूज किया एमसी4 कनेक्टर्स के केस में, ठीक है, एंड देयर इज नो लूज कनेक्शन। हेरन छोड़ बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। કોના નામે લાઇટ બિલ છે? તમારા નામે જ છે એમ ને? હા તો હમણાં તમારા બુકિંગ માટે ચાલુ છે. બુકિંગ કરાવો પછી ભાવ સરકારનો આવે પછી હું તમને જણાવું કે કેટલા ભરવાના થશે. જૂનો ભાવ કહું તમને, જૂનો ભાવ 3 kVA ના 85,000 રૂપિયા હતા જૂનો ભાવ, પણ હવે નવો આવે છે કેટલો એ તમને 1 મહિના પછી ખબર પડે. બધું 85 માં સબસિડી બાદ કરીને ભાવ હતો. લાઇટ બિલ કેટલું આવે? 5-6 હજાર રૂપિયા તો ના કવર કરે, 4500 સુધી કવર કરે. હા પછી હા 5 kV લો તો તમારે કવર કરે 7,500 સુધી કરે.
5 केवी ना 1,54,000 रुपया। हाँ सब्सिडी कापीने जूनो भाव छे, हवे नवो केटलो आवे ए तमने महीना पछी खबर पड़े एम कहूं। अतार बुकिंग थाय तमारुं। हाँ वांधो नहीं, रिंग करजो ने। हाँ what will happen? In this case, your system would be generating based on the lowest current on which degree it is being produced. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका जो सर्किट में एक स्ट्रिंग में सीरीज अगर मॉड्यूल कनेक्टेड है, the module which is generating lowest current that would be circulating into the string, right? तो आपका जो entire string का जो परफॉर्मेंस होगा that will depend on the module which is least generating. अगर मेरे दो मॉड्यूल अलाइन हैं, एक 5 डिग्री पर एक 30 डिग्री पे हो गया है और समर का सीजन है, तो 30 डिग्री वुड बी जनरेटिंग लेस कंपेयर टू 5 डिग्री, राइट? तो क्या होगा कि जो 30 डिग्री पर जो मॉड्यूल है उसका ही करंट सर्कुलेट करेगा. सो दिस इज द क्लियर कट केस. द मॉड्यूल इज नॉट इन फॉर्मली अलाइंड एंड योर सिस्टम वुड बी जनरेटिंग लेस. एरे शेडिंग. सो शेडिंग के बारे में हमने काफी पढ़ा है, काफी जाना है, काफी सारे वेबिनार्स हुए. जब तक कोविड शुरू हुआ तब से हम जो 3:30 बजे की जो वॉर होती है प्रेजेंटेशन की, तो उसमें हम देखते हैं कि मतलब एरे शेडिंग के ऊपर काफी सारे प्रेजेंटेशन हुए. अलग अलग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स के, अलग अलग स्टेट की जो नोडल एजेंसीज है उनके प्रेजेंटेशन हमने देखे. ठीक है, तो शेडिंग एक सबसे बड़ा विलन है हमारे सोलर सिस्टम के लिए. तो उसको एड्रेस करना इट इज द मोस्ट एक्चुअली डिफिकल्ट टास्क भी है, बिकॉज आज हमने सिस्टम लगाया, कल उठ के कोई नया बिल्डिंग हमारे सिस्टम के सामने बन गया तो दैट वुड बी कास्टिंग शैडो. लेकिन जब हम सिस्टम लगा रहे हैं, अगर तभी हम शैडो को अवॉइड कर रहे हैं, तो आवर सिस्टम वुड बी इन हेल्दी कंडीशन. दैट वुड बी रिलैक्सेशन टू यू इन लेटर डेज. जैसे अगर आपने सिस्टम का वारंटी दिया है 1 ईयर या 2 ईयर, सपोज इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ शैडो कास्टिंग ऑब्जेक्ट नियर बाय योर सोलर इंस्टॉलेशन, क्या हो सकते हैं शैडो कास्टिंग ऑब्जेक्ट? जैसे कि एंटीना है, ट्रीज है, लाइक और दूसरे जैसे कि कुछ लोगों के कपड़े सुखाने के तार होते हैं. ठीक है, तो देयर वुड बी कास्टिंग शैडो ऑन मॉड्यूल. एंड वंस जब भी आप सोलर मॉड्यूल का इंस्टॉलेशन करा रहे हैं, तो आपको इंश्योर करना होगा कि यस देयर आर नो सच काइंड ऑफ ट्रीज, नो सच काइंड ऑफ एंटीनास एंड नो सच काइंड ऑफ not drawing any जो वायर्स होते हैं नियर बाय योर सोलर प्रोजेक्ट, राइट? बिकॉज शैडो से क्या होगा कि शैडो से आपके जो मॉड्यूल्स होंगे, मॉड्यूल्स जो होगा वो जनरेटर की जगह एक तरह से कंज्यूमर का टाइम काम करेगा. और वो मॉड्यूल्स के जिस सेल्स पे अगर शैडो आ रहे हैं, तो वो दैट सेल वुड बिकम लाइक दे वुड हैव मोर टेम्परेचर कंपेयर टू अदर सेल्स. ठीक है, तो वो दे वुड बिकम मोर हॉटर कंपेयर टू अदर सेल्स. जैसे ही वो हॉट होने लगा, एक दिन 2 दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम और few years you can say 1 or 2 years, it will become hotspot on the module. और उस हॉटस्पॉट का आप टेम्परेचर अगर मेजर करेंगे एक साल के बाद, तो what would be the, what do you think, what would be the temperature? I will say you it would be more than 100 degrees Celsius. This is not enough to destroy your module and your system, right? So any kind of shadow casting object is there, then during design you have to consider it, and it is to be removed as soon as possible. Yes, my system output is less in this scenario, right? Comparable data in the same location. There are no clear indication, right? And modules are aligned proper, and my system design is also good, right? So what would happen? What would have happened? My system is not generating. Will be able because इन्वर्टर जैसे हमने कार्तिकेय जी का भी जो लेक्चर था उसमें देखा कि उन्होंने कहा था कि जो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम, इफ यू आर नॉट एड्रेसिंग ओवर हीटिंग प्रॉब्लम, क्योंकि क्या होता है रूफटॉप सिस्टम में हम कहाँ इन्वर्टर्स लगाते हैं, इन्वर्टर स्टेयरकेस केबिन में लगा देते हैं टेरेस, राइट? हम लोग कुछ उसके चारों तरफ अच्छा सा एक डेकोरेटिव एंक्लोजर बना देते हैं. ठीक है, उसके अंदर इन्वर्टर रख देते हैं. तो व्हाट विल हैपन? इन्वर्टर आर कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम डीसी टू एसी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ठीक है, क्या होते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, दे स्टार्ट एमिटिंग हीट.
and these heat will be enclosed in the closed confined environment. So what will happen that heat is enough to reduce the performance of inverter. So आपका जो इन्वर्टर का परफॉर्मेंस होगा वो भी काफी डाउन हो जाएगा. ठीक है. दूसरा क्या हो सकता है कि इन्वर्टर के फिल्टर्स हमें रेगुलरली चेक करने चाहिए. कभी कभी क्या होता है कि इन्वर्टर के क्लॉक जो बैंड्स होते हैं जहाँ से हम जो हॉट एयर बाहर निकलती है और जो कूल एयर होती है वो इन्वर्टर के अंदर जाती है. ठीक है. अगर वो नहीं हो रहा है, अगर ये प्रोसेस बंद है, तो इन दैट केस योर इन्वर्टर वुड नॉट बी generating at its optimum efficiency. So what we need to take care, we need to always check if there are no any clock bands or there are no any bad ventilation, there is proper ventilation at the system installation, right? Because it will degrade your inverter, and in long run, after 1 or 2 years, yes, you will find if there are vents are cleared, but your inverter would not be generating at its optimum efficiency. ठीक है. अगर ये केस भी नहीं होता है, this is also not the case. So what is the what are the case which might be creating or which is the cause my system is not generating? ठीक है. क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम्स जो है वो ग्रिड से आ रही है. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक सोलर इंस्टॉलेशन में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही थी. लोगों को मतलब जो आगे ऑपरेटर्स थे उनका कहना था कि माय सिस्टम इज नॉट जनरेटिंग अर्लियर व्हाट इज यूज्ड. तो हमने चेक किया तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम in that scenario. Everything was very well designed, very well plans were one was done very regularly. ठीक है. क्लीनिंग भी हमेशा और से वीकली क्लीनिंग हो रहा था, वीकली क्लीनिंग. बट द प्रॉब्लम वाज फ्रॉम द ग्रिड साइड. द ग्रिड वाज वेरी volatile. volatile का कहने का मतलब जैसे गाँव में हमने एक सिनेरियो आगे देखा था कि जहाँ पर वोल्टेज का काफी फ्लक्चुएशन है. सपोज व्हाट इज द वोल्टेज विंडो ऑफ योर स्विंग इन्वर्टर? कितना हो सकता है वोल्टेज विंडो आपका सिंगल फेज इन्वर्टर्स के लिए? that would be around 260 volt upper side, and lower side it would be around 180 volt, right? लेकिन अगर मेरा सिस्टम वोल्टेज 260 के ऊपर जाता है तो क्या होगा? If my grid voltage is more than 260, then my inverter will automatically go in the fault mode. Yes, the grid is in balance. If my system voltage is below 180 volt, then what will happen? It will also detect as a fault in the grid. So if there is some grid fluctuation, और ये सिनेरियो कहाँ हम देखते हैं? नॉर्मली क्या होता है कि सिटी एरिया में इज आल्सो वेरी इन रिमोट विलेजेस जहाँ पर ओवरहेड ट्रांसफर, तो उस केस में ओवरहेड ट्रांसफर लाइन का एक नॉर्मल सिनेरियो होता है कि जहाँ पर कंडक्टर्स ओपन कंडक्टर्स होते हैं. ओपन कंडक्टर की कैपेसिटिव इफेक्ट डेवलप होती है. उस कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से व्हाट विल हैपन, माय सिस्टम वोल्टेज विल एट रिसीविंग एंड will be more. There's a parity effect you would also have learned in the electrical system, right? तो इस टाइप की जो सिस्टम होती हैं वो क्या होती है कि ग्रिड जो हमारा जहाँ पर सिस्टम होता है उसको अनबैलेंस करता है और हमारा सिस्टम जो रहेगा इन्वर्टर रहेगा वो फॉल्ट मोड में आ जाएगा. ठीक है. लेकिन जैसे ही वोल्टेज अगर अपनी रेंज में आ जाएगा बिटवीन 180 to 260 वोल्ट, देन yes my system will consider it is a healthy system and it will start again generating. ठीक है. लेकिन for this period when my voltage was not in the range, ठीक है, for this period my inverter was not generating, my system was not generating, so I was using that power. So after end of the day what I have earned, I would have generated 5 kilowatt hour, but I end up in generating 4 kilowatt hour, right? Just because of the faulty grid. Or the modules have lower peak performance than guaranteed by the manufacturer. जैसे कि अभी के केस में तो काफी स्ट्रिक्ट हो गया है कि जो मॉड्यूल्स के काफी इंस्पेक्शंस हो रहे हैं. ठीक है. लेकिन अर्लियर डेज इट वाज द प्रॉब्लम कि मॉड्यूल्स के इंस्पेक्शंस नहीं होते थे और डेटा शीट्स कुछ भी चिपका दी जाती थी. सपोज 230 वोल्ट पीक का मॉड्यूल है तो उसकी जगह 210 के मॉड्यूल्स भी अवेलेबल थे. 330 वोल्ट पीक के मॉड्यूल्स हैं उसकी जगह 300 के पकड़ा दिए गए हैं आपको. तो दिस इज ऑल्सो द केस. तो हमें चेक करना चाहिए मॉड्यूल्स को, हमें फैक्ट्री लेवल पर ग्रिड इंस्पेक्शन करने चाहिए और मॉड्यूल की पावर रेटिंग हमें चेक करनी चाहिए. So the scenario number 3, right? Degradation in the system output. So इस केस में हम देख रहे हैं कि आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज लोअर देन इट यूज्ड टू बी. So earlier it was a much higher generation, but the same system is now generating less. Right. So what would be the fault indication? The LV current is lower than
be expected under high conditions of solar radiation. If current is lower than previously, right? So power output is lower than it was. तो ये हो सकता है कि हमारा सिस्टम जो है पहले हम काफी अच्छा जनरेट कर रहा था, लेकिन 1 साल के बाद या 2 साल के बाद हमारे सिस्टम का आउटपुट कम हो गया, ठीक है। तो हमने जैसे पहले केस में देखा था कि एरे पे शेयरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। हमारा जब हमने इंस्टॉल किया था तब देयर वाज नो एनी शैडो कास्टिंग ऑब्जेक्ट प्रेजेंट अराउंड माय स्ट्रक्चर, राइट। बट व्हाट हैपेंड नाउ, ठीक है, 1 ईयर डाउन द लाइन मेरे सामने वाले बंदे ने 2 मंजिला और बिल्डिंग बढ़ा दी, ठीक है। अगर 2 मंजिला बिल्डिंग बढ़ा दी तो आई हैड नॉट एस्टिमेटेड दिस थिंग, ठीक है। मैंने एस्टिमेट नहीं किया था कि नहीं किया था कि मुझे सामने जो बंदा है वो 2 मंजिला बिल्डिंग बना देगा, तो उसका जो शैडो है वो मेरे सिस्टम के ऊपर आ रहा है, मेरे सिस्टम के ऊपर आ रहा है। तो यही पॉसिबल हो सकता है कि वो हो सके। या दूसरी चीज ये हो सकती है कि जैसे कुछ गार्डन होते हैं तो गार्डन के कुछ ट्रीज काफी बड़े हो गए, तो इन दैट केस वी नीड टू रिमूव, ठीक है। अगर ये केस नहीं है तो डिफेक्ट्स इन द मॉड्यूल का जो डिग्रेडेशन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिग्रेडेशन दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट नाउ, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मोनोक्रिस्टल और मल्टीक्रिस्टल के लिए डिग्रेडेशन अलग अलग अभी मार्केट में है। जैसे फर्स्ट ईयर के डिग्रेडेशन के लिए कि मॉड्यूल के जनरली 3% मल्टीक्रिस्टल मॉड्यूल 4% के आसपास, 2.5 और 3% के आसपास है, ठीक है। जो फर्स्ट 10 ईयर्स के जो डिग्रेडेशन है किसी मॉड्यूल के लिए वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड, जो नेक्स्ट 15 ईयर मतलब 11 ईयर से 25 ईयर तक के जो जनरेशन है वो भी 10% से ज्यादा नहीं आएगी। तो मतलब सॉरी डिग्रेडेशन, तो टोटल जो क्यूमुलेटिव डिग्रेडेशन जो होना चाहिए हमारे मॉड्यूल का वो 20% से एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ द मॉड्यूल, दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। लेकिन क्या होता है ये कुछ केस में जैसे 1 से 10 साल तक के जो सिनारियो अगर हम बात करें तो आफ्टर 1 ईयर अगर मॉड्यूल का डिग्रेडेशन 3% 4% से ज्यादा होगी, ठीक है, तो उस केस में भी ये हो सकता है कि 10% तो नहीं हुआ है लेकिन डिग्रेडेशन जो एक्सपेक्टेड था कि हाँ 3 साल में 3% से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हो रहा है। तो इन दिस केस ऑल्सो योर सिस्टम वुड नॉट बी जनरेटिंग, ठीक है। डिग्रेडेशन क्या होता है कि जैसे मॉड्यूल आर एक्सपोज टू सनलाइट दे स्टार्ट जनरेटिंग, और जैसे ही वो सर्विस में आते हैं ना तो उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो डिग्रेडेशन को हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हायर क्वालिटी मॉड्यूल जो हायर अच्छी क्वालिटी से बनाए गए हों, ऑटोमाइजेशन प्रोसेस से बनाए गए हों और जिसमें हायर क्वालिटी के सेल्स लगे हों, उसका डिग्रेडेशन काफी कम होता है। अब हम प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन में ये भी क्राइटेरिया हम देख सकते हैं कि किसी मॉड्यूल के सेल में कुछ हेयर क्रैक्स नहीं है, कुछ माइक्रो क्रैक्स नहीं है, कुछ सेल के ऊपर कुछ जैसे फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे क्या होता है कि मॉड्यूल बनाने के टाइम जहाँ पर मैनुअल प्रोसेस होता है वहाँ पर नॉर्मल केस में आप देखेंगे अगर मॉड्यूल फेलियर तो उस केस में जैसे सेल्स के ऊपर ईवीए की कुछ ईवीए सीडी होती है खाली एसिडेट वाली, ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं वो कुछ फॉरेन पार्टिकल सेल के ऊपर आ जाते हैं और ग्लास के अंदर सैंडविच हो जाते हैं, ठीक है। कुछ केस में हेयर कुछ केस में आ जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये मॉड्यूल में हॉटस्पॉट जनरेट करता है और ये मॉड्यूल को डिग्रेड कर देता है, ठीक है। अगर ये केस भी नहीं है तो क्या होगा कि मेरे सिस्टम का जो कनेक्टर है वो लूज हो गया होगा या कुछ बर्नआउट हो गया होगा या डिग्रेड हो गया होगा, डिटेरियोरेट हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब कुछ कुछ मटेरियल जो होते हैं वो डिटेरियोरेट हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे केबल टाई नॉर्मल केस में आप देखते होंगे तो 6 महीने के बाद केबल टाई टूट जाती है, ठीक है। तो हमें उसका रेगुलर मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। सेम केस क्या हो सकता है कि टर्मिनल के केस में, जैसे नॉर्मल केस में नॉर्मल पीपल जो इंस्टॉलर्स है वो यूज करते हैं MC4 कनेक्टर्स, लेकिन जो MC4 कनेक्टर्स है क्या वो वर्जिन प्लास्टिक है? अगर वर्जिन प्लास्टिक नहीं है तो क्या वो रिसाइकल प्लास्टिक है? अगर वो रिसाइकल प्लास्टिक के MC4 कनेक्टर्स हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप ओरिजिनल MC4 कनेक्टर्स या जो नॉर्मल दूसरे कनेक्टर्स हैं और जो सस्ते कनेक्टर उनका प्राइस डिफरेंस देखेंगे ना तो दे आर इट इज वेरी ह्यूज, क्योंकि जो सिंगल पेयर ऑफ कनेक्टर मेल फीमेल one is costing 50 rupees and other one is costing 95 rupees, ठीक है। ये केस हो सकता है। तो आपको पता चलना चाहिए कि मतलब वर्जिन प्लास्टिक किसने यूज किया है। अगर वर्जिन प्लास्टिक नहीं यूज किया है तो वो साल 2 साल के बाद दैट प्लास्टिक वुड डिटेरियोरेट एंड योर सिस्टम वुड बी डिस्कनेक्टेड, राइट। डिफेक्टिव बाईपास डायोड इन इंडिविजुअल मॉड्यूल्स के अंदर हो सकता है कि कुछ जो बाईपास डायोड है उसका लाइफ कंप्लीट हो गया और वो बाईपास डायोड फेलियर हो गया हो। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी कॉजेस, जैसे कि आप देख सकते हैं लाइटनिंग और वोल्टेज सर्ज, ठीक है, शॉर्ट सर्किटेड डायोड यूजिंग और सेल स्ट्रिंग्स एंड रिड्यूसिंग मॉड्यूल आउटपुट। तो हमें प्रॉपर
इस प्रोसेस का फॉलो करना चाहिए कि हमें तो एलिमिनेशन करना चाहिए पहले स्ट्रिंग और उसके बाद मॉड्यूल। ठीक है, हमें पहले स्ट्रिंग को चेक करना चाहिए कि स्ट्रिंग का प्रॉब्लम है, कौन सा स्ट्रिंग कम जनरेट, which string is generating very low, and then when we have identified one string, then we should search for the module which is low generating or which has faulty bypass errors. Faulty bypass errors काफी नॉर्मल केस में देखने को मिलते हैं, साल 2 साल के बाद ड्यूरिंग लाइटनिंग मॉनसून सीजन में काफी अधिक। If it is not the case, then damage to the module cells caused by lightning. Lightning एक सबसे बड़ा विलेन है जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं प्रॉपर सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेज जो हम लोग यूज करते हैं एसपीडी। ठीक है, एसपीडी में भी दो टाइप के आते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ एसपीडी, टाइप 1 एंड टाइप 2। नॉर्मल केस में सोलर में हम टाइप 2 यूज करते हैं बिकॉज टाइप 1 आर कॉस्टली आल्सो, एंड टाइप 1 इज यूज आपको मैं बताना चाहूंगा कि टाइप 1 और टाइप 2 दो अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं। जहां पर टाइप 2 वहां यूज किया था जहां we are able to separate entire system from the strip or from the lightning path, और टाइप 1 वहां यूज करते हैं जहां पर हम लोग लाइटनिंग पाथ को सिस्टम से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, लाइटनिंग रजिस्टर्स का भी हम यूज कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ लाइटनिंग रजिस्टर्स अवेलेबल इन द मार्केट। एक तो अर्ली स्ट्रीमर जो मार्केट में अवेलेबल है, सेकंड वन इज रोड हम लोग यूज करते हैं। फ्रैंकलिन रोड जो है वो मार्केट में काफी लो प्राइस पर अवेलेबल है, दैट कैन आल्सो बी यूज्ड। ठीक है, अगर ये केस नहीं है तो शॉर्ट सर्किट मॉड्यूल जंक्शन बॉक्स में, तो ड्यू टू मॉइस्चर इंग्रेस मॉड्यूल के अंदर मॉइस्चर आ सकते हैं और वो शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। और द नेक्स्ट थिंग इज द मॉड्यूल डिग्रेडेशन। अगेन check the readings from the string and module and compare with the data set. If it is not the case, then yes, your module has been degraded और आपका जो सिस्टम है that is already degraded। ठीक है, अगर ये भी केस नहीं है, ठीक है, अगर फॉल्ट इंडिकेशन आएगा कि नो फॉल्ट और अनरिजल्व रीडिंग डिटेक्टेड इन द एरे, सो इन्वर्टर ओवरहीटिंग, अगेन द सेम केस। सो इन्वर्टर को आपको रेगुलर मेंटेनेंस करना चाहिए, उसके वेंट्स जो है वी शुड रेगुलरली चेंज द वेंटिलेशन, clean the clock vent and make the good ventilation for the inverter, right? और हमें ये भी चेक करना चाहिए कि there is not a problem from the grid side. If there is not a problem from the grid side, then we should immediately connect to the inverter manufacturer. So this was from my end. Thank you very much all of you for joining us on this